See, in BFS, what is happening? BFS stands for breadth first search. And in BFS and DFS are the best algorithm when there is unit weight. That means no weight is given or there is equal amount of weight. See, here no weight is given. From A to B, in how much weight we can reach, that is not given. If it is not given, or unit length weight is there, suppose 1 or 2 equal weight is for reaching from one node to another node. So here no weight is given, so we can assume it is equal amount of weight. And here what is happening in BFS, status 1, that means it is ready state. Status 2, that means for waiting state. Status 3, that means for processing state. So you can see here. See, these are, if graph is unweighted or equal weighted, then it is better than other algorithm like Dijkstra's algorithm or Prim's algorithm. It is the one of the best algorithm. BFS is one of the best algorithm if unweighted graph is there or equal amount of weight is given. So here you can see that to find the shortest path, we are using BFS. BFS we are using for finding the shortest path. And here, these are the application of DFS. That means depth first search applications are using BFT. We can check whether node is connected or not. And we can check given graph contains cycle or not. We can check graph is bipedal graph or not. So all these things are the application of DFS. We can do all these things by using BFS and DFS, both. So in this case, you can check here. Hello, you can, you are able to see all these things written over here, application of DFS. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Now here, what is in social networking, network broadcast, garbage collection, in all these cases, we are using BFS and DFS both. Here you can look here. See, I was saying that status 1 is for ready state, 2 is for waiting state, and 3 for processing state. Suppose when all the nodes are given here, first of all, we will mark 1 for all the nodes. We will mark 1 for all the nodes. That means their status is in the ready state. That means all nodes are first of all in the ready state. After that, what we are doing here, after that, we are picking source vertex and we are keeping inside the queue. We are picking the source vertex and we are keeping inside the queue. Suppose this is our source vertex. I want to find out the shortest length from here to all other nodes. So we can say that the status 1 for A. That means before status 1 for all the nodes. And when we will enter A inside the queue, then its status will change to 2. That means now A you can mark as 2. That means it is in the waiting state. When we are entering any node, inside the queue, we are changing its status as 2. That means now A will, instead of 1, now A will become 2. Let me do this one. Okay. See, previously all the node is of status 1. That means it is in ready state. Now we have picked one node and we change its status as 2. That means we have entered this node inside the queue and we change its status as 2. That means this node now status is 2. After that, we will pick out that node. We will take out that node from the queue and mark all the adjacent vertex of that node. That means suppose we have picked out, see, first of all, what is that? All the nodes status is 1.
and when we pick out the node, see, first of all the node status is 1 and we take the source vertex and we place it inside the queue. मतलब सोर्स वर्टेक्स लेंगे पहले और उसे क्यू के अंदर डाल देंगे. उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? जो सोर्स वर्टेक्स होगा और जो क्यू के अंदर वर्टेक्स डालेंगे उसका स्टेटस 1 से 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे ए आपका सोर्स वर्टेक्स था और सोर्स वर्टेक्स का स्टेटस एक ही जगह 1 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया जब क्यू के अंदर डाला. अब इसके बाद उसे क्यू के अंदर से निकालना है और उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू के अंदर डालना है. तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं? बी, सी एंड ई. बी, सी एंड ई आर एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए. तो बी, सी हम लोगों ने क्यू के अंदर डाल दिया और ए को क्यू के बाहर निकाल लिया. तो जिसको क्यू के बाहर निकालेंगे उसका स्टेटस हो जाएगा 3. पहले तो इसका ए का स्टेटस हो गया 3 और बीसीई का स्टेटस हो गया 2. बीसी जो क्यू के अंदर डाल दिए उसके ए के एडजेसेंट कौन से हैं? बीसीई. तो बीसीई को क्यू के अंदर डाला और ए को क्यू के बाहर निकाला. तो क्यू का अब ए का स्टेटस 2 की जगह हो गया 3. दैट मींस प्रोसेसिंग स्टेट. मतलब ए को प्रोसेस कर रहे हैं और बीसी जो इसके एडजेसेंट हैं वो क्यू के अंदर डाल दिए. तो बीसीई का स्टेटस हो गया 2. अब बीसी का स्टेटस था 2. अब बी को बाहर निकाला क्यू से. देखो बीसी क्यू के बाहर, ए पहले बाहर निकला, अभी बी को बाहर निकालेंगे क्यू से. तो बी का स्टेटस क्या हो जाएगा? स्टार्ट ऑफ 2. इसका स्टेटस हो जाएगा 3. बी का स्टेटस हो जाएगा 3 और बी के एडजेसेंट देखेंगे. सी का, सी तो ऑलरेडी क्यू के अंदर प्रेजेंट है तो बी के बाद क्या है? डी है. तो डी को डाल देंगे क्यू के अंदर. तो यहाँ पे देखो बी को बाहर निकालेंगे और सी पहले से प्रेजेंट है और डी को डाल दिया क्यू के अंदर. तो लाइक दिस. तो नाउ आई थिंक सो यू गॉट हाउ टू चेंज द स्टेटस. के पहले क्यू रहता है वेटिंग रेडी स्टेट में, फिर आता है जब क्यू के अंदर जाता है तब आता है वेटिंग स्टेट में, और जब क्यू से बाहर निकालते हैं और उसके एडजेसेंट को क्यू के अंदर डालते हैं तो वो हो जाता है स्टेटस 3. दैट मींस इट इज इन प्रोसेसिंग स्टेट. तो वो प्रोसेसिंग स्टेट में आ जाता है. तो आपको ये तो मैंने समझाने के लिए किया कि रेडी स्टेट क्या है, वेटिंग स्टेट क्या है और प्रोसेसिंग स्टेट क्या है. नाउ कम टू द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम पे सीधे आते हैं. प्रॉब्लम एंड एल्गोरिथम. तो ये बीएफएस है. बीएफएस के लिए क्या करना है? यहाँ पे देखो सपोज ये डायग्राम आपको दिया गया है, बीएफएस के लिए सॉल्व करना है. तो पहले आप वाला तुम क्या डाल दोगे? क्यू के अंदर डाल दोगे जो सोर्स वर्टेक्स है. इसके बाद उसके एडजेसेंट वर्टेक्स जो है, तो पहला स्टेप था कि आपने सर. हाँ सर स्टूडेंट्स एंट्री लेना चाह रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. अच्छा तो आप ये देख लेते. तो टाइमिंग ही आना चाहिए ना स्टूडेंट को. देखो यहाँ पे देखो कि जो तुम्हारा ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मान लो ये तुम्हें डायग्राम दिया गया है ए बी सी डी, दीज ऑल आर नोड्स. अब इसमें सोर्स वर्टेक्स मान लो ये था आपका, ए वाज योर सोर्स वर्टेक्स. तो ए वर्टेक्स को तुमने क्यू के अंदर डाला. अब देखिए उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं? ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं? बी सी डी. तो बी सी डी ए को बाहर निकाला क्यू से और बी सी डी को क्यू के अंदर डाल दिया. नेक्स्ट क्यू से बाहर निकाला बी को और बी के एडजेसेंट वर्टेक्स देखे. बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं? ए है तो ये तो क्यू के अंदर ऑलरेडी जा चुका है. तो कौन सा एडजेसेंट वर्टेक्स है? ई है. तो ई को क्यू के अंदर डाल दिया. आफ्टर दिस CD क्यू के अंदर है. आफ्टर दैट CD क्यू के अंदर है. नाउ वी टेक आउट द C फ्रॉम. हेलो, CD क्यू के अंदर है. अभी मैंने C को बाहर निकाला क्यू से. तो अब उसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखेंगे C के. हेलो, ठीक लोग. पहले सबसे पहले ए को मैंने क्यू के अंदर डाला, उसके एडजेसेंट देखे, उसके एडजेसेंट थे बीसीडी. तो ए को बाहर निकाला और बीसीडी को क्यू के अंदर डाल दिया. अब क्यू का फ्रंट से बी को बाहर निकाला
और बी के एडजेसेंट देखिए, बी के एडजेसेंट ए है जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, और एक ई है, तो ई को क्यू के अंदर डाल दिया। नया वर्टेक्स सी था तो ई को एडजेसेंट बी था, और नया वर्टेक्स था तो उसे क्यू के अंदर डाल दिया। अब मैं देखूंगा फ्रंट कौन सा है, सी है। अब सी के एडजेसेंट देखेंगे, एक तो ई है और एक एफ है और एक ए है, तो ये तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है। और दूसरा एडजेसेंट कौन सा है, ई है और एफ है, तो ई तो ऑलरेडी क्यू के अंदर है, तो अभी किसको क्यू के अंदर डालना है, एफ को, जो एडजेसेंट ऑफ सी है। सी का जो एडजेसेंट है उसको क्यू के अंदर डाल देंगे, दैट इज एफ। तो यहाँ पे एफ को क्यू के अंदर डाल दिया। अब फ्रंट में कौन है, डी। डी को क्यू से बाहर निकाला, डी के एडजेसेंट वर्टेक्स देखे, डी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, ए है और एफ है। तो डी के एडजेसेंट वर्टेक्स ए एफ है, तो ए तो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया, एफ नया वर्टेक्स है जो प्रोसेस नहीं हुआ है। तो एफ को क्यू के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे एफ को क्यू के अंदर डाल दिया। अब ई को बाहर निकालेंगे क्यू से, ई के एडजेसेंट वर्टेक्स देखेंगे, ई के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, विच इज द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई। तो ई के एडजेसेंट वर्टेक्स, हेलो, ई के एडजेसेंट वर्टेक्स देखेंगे, ई के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, एक तो बी है जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, एक सी है जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, रिमेनिंग वर्टेक्स है जी, तो जी को डाल देंगे क्यू के अंदर। तो यहाँ पे जी को डाल दिया क्यू के अंदर, तो यहाँ पे जी को डाल दिया क्यू के अंदर। अब जी को बाहर निकालेंगे, जी के एडजेसेंट वर्टेक्स देखेंगे क्यू से, तो क्यू से जी को बाहर निकाला हो, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखे, तो जी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, ई है और एफ है, और दोनों ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुके हैं। ई और एफ मतलब क्यू में ऑलरेडी जा चुके हैं और क्यू से बाहर भी आ चुके हैं, तो अभी कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं बचा जो प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यू हो गई एम्प्टी, दैट मीन्स जब जी को बाहर निकाला उसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखे ई एफ है, और ई एफ ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुके हैं, तो क्यू के अंदर देखेंगे अभी कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं है, क्यू हो गया एम्प्टी, दैट मीन्स उसका एडजेसेंट वर्टेक्स जी का कोई ऐसा नहीं है जो वेटिंग स्टेट में हो या रेडी स्टेट में हो जिसे मैं क्यू के अंदर डाल सकूं। तो बाकी सारे वर्टेक्स प्रोसेस हो गए, तो प्रोसेस किस ऑर्डर में हुआ, दैट इज रिटन ओवर हियर। तो पहले प्रोसेस ए हुआ, आफ्टरवर्ड बी को बाहर निकाला, दैट मीन्स प्रोसेस बी हुआ, आफ्टर दैट सी को बाहर निकाला, प्रोसेस सी हुआ। तो इसी हिसाब से ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ए बी सी, फिर डी हुआ प्रोसेस, आफ्टर दैट ई हुआ प्रोसेस, आफ्टर दैट एफ हुआ प्रोसेस, आफ्टर दैट जी। तो ये प्रोसेसिंग किस हिसाब से होगी, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर सपोज ये आपको एग्जाम्पल, इसे लेवल लेवल टेस्टिंग भी, लेवल ट्रावर्सल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राफ लेवल ट्रावर्सल भी बोलते हैं इसे। इसे क्यों बोलते हैं, मान लो ये अपना सोर्स वर्टेक्स है, एक एग्जांपल दूसरा देखो, आप क्यों हिसाब से कर लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स है, ये सारे इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो पहले ए एक्स एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो ए एक्स को क्यू के अंदर डाल दोगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स है वो एक लेवल में आ गए, मतलब सोर्स वर्टेक्स 0 लेवल में था, ये किस लेवल में आ गए, लेवल नंबर 1 पे आ गए। तो इसी हिसाब से अब ए को बाहर निकाला है, इसका एडजेसेंट कौन है, ए वाला है, तो इस वर्टेक्स को, और एक्स को बाहर निकाला है, एक्स का एडजेसेंट कौन से हैं, डी एंड सी, तो ये डी सी और ए वाले वर्टेक्स किस में आ गए, एक लेवल में आ गए। तो इसी हिसाब से अब फिर इनको बाहर निकालेंगे, इनके एडजेसेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं क्यू के अंदर। अब इसके बाद डी एंड सी को देखेंगे, डी के एडजेसेंट कौन है, एफ है, और सी तो ऑलरेडी क्यू में आ चुका है, तो इसी हिसाब से इसे पूरा वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे लेवल बेस्ड टेस्टिंग भी बोला जाता है। अभी इसमें कोई दिक्कत हो तुम्हें तो बताओ। हेलो हेलो, नाउ यू कैन सी द एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में क्या है, देखो पहले क्या करना है, बीएफएस एक ग्राफ दिया गया है विद एन नोड्स हैं, उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है, अजाइन ऑल नोड टू द रेडी स्टेट। पहले सारे नोड को किस स्टेट पर अजाइन कर दोगे, रेडी स्टेट, दैट मींस स्टेटस इज इक्वल टू 1।
insert the source node inside the queue and change its status to waiting state। तो उसका स्टेटस क्या कर दोगे, जो क्यू के अंदर डालोगे सोर्स वर्टेक्स को, उसका स्टेटस हो जाएगा 2। और ये जब तक प्रोसेस रिपीट करना है जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो ये सारे स्टेप रिपीट करना है। डिलीट किससे करना है, क्यू के फ्रंट से। प्रोसेस चेंज इट्स स्टेटस टू प्रोसीड स्टेट, जिसको डिलीट कर रहे हो क्यू से उसका स्टेटस क्या कर दोगे, प्रोसेस स्टेट, मतलब स्टेटस 3 हो जाएगा। इंसर्ट ऑल नेबर, और उसके सारे नेबर को किस में इंसर्ट कर दोगे, क्यू के अंदर। इंसर्ट ऑल इट्स नेबर इनसाइड द क्यू विच आर इन रेडी स्टेट। तो उनका जो बंद था पहले स्टेटस, तो उनका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेडी स्टेट में जो थे वो हो जाएंगे वेटिंग स्टेट में, मतलब स्टेटस हो जाएगा उनका 2। जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, नेबरिंग वर्टेक्स होंगे उसके, वो आ जाएंगे क्यू के अंदर, और उनका स्टेटस 1 से क्या चेंज हो जाएगा, स्टेटस 2 हो जाएगा, और ये एंड ऑफ वाइल लूप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सारी प्रोसेसिंग मिल जाएगी कि किस हिसाब से बीएफएस प्रोसेस करेगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इफ यू विल सी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे मान लो ये सेम एल्गोरिथम है जो मैंने ऊपर बताया है, और इसमें क्या है, कब तक रिपीट करेगा, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। मान लो हर एक वर्टेक्स इस क्यू के अंदर आएगा और हर एक वर्टेक्स इससे डिलीट होगा, तो ये कितनी बार चलेगा लूप, बी टाइम चलेगा, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उतनी बार चलेगा। और सभी वर्टेक्स के एडजेसेंट देखने हैं, तो एडजेसेंट देखने के लिए कितनी बार चलेगा, मतलब हर एक वर्टेक्स के कितने एडजेसेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। मान लो अगर 6 वर्टेक्स हैं तो 6 वर्टेक्स हैं तो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मतलब अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स बी है तो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे बी माइनस बी 1, और ये इस लूप के अंदर है, दैट मीन्स बी इंटू बी माइनस 1। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी v इंटू बी माइनस 1, बी इंटू बी माइनस 1, बी इंटू बी वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी है, या तो माइनस प्लस कर लो या माइनस ही रख दो, तो इसका क्या हो गया, बी प्लस बी स्क्वायर। और नंबर ऑफ एडजस कितनी हो सकती है, मान लो बी स्क्वायर अगर आया है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर मतलब दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस। तो नंबर ऑफ एडजस ई है, तो दैट मीन्स बी स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद ई। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बी प्लस ई, मतलब वर्टेक्स प्लस एडजस। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई आपकी बीएफएस की। तो अभी इसमें कोई दिक्कत है किसी को, हेलो 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 हेलो।